Armamentarium finale image quiz. Next slide, please. Now, I have always wanted to put more and more drugs into the garbage bin, so that अपनी memory खत्म हो रही है वैसे भी, तो थोड़े कम drugs याद रखेंगे तो अच्छा है. तो वो उस attempt में ये जो बता रहा हूँ, these are fixed dose combinations. What are fixed dose combinations? Say aspirin with clopidogrel, 75 plus 75 is a fixed dose combination. So all such fixed dose combinations should be scrutinized by us. We must think of the logic, we must think of the adverse drug reactions. For example, can somebody tell me aspirin clopivaz AP, for example, 75-75, aspirin with clopidogrel. What is the problem with that? Anybody? We have to think of problems with all drug combinations. So tell me, what is the problem with this one? Dose titration, he said? Under 75 अगर किसी को देना है और ये भी 75 देना है, suppose, because clopidogrel not is given 150 for long, it is given 150 for a month after PCI. So one thing he said is, what did you say, sir? Dose titration. Suppose आपको एक ड्रग एलिमिनेट करना है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, स्ट्रोक में 21 दिन के बाद, सो वो कभी कभी निकलेगा नहीं ड्रग, वहीं पे रह जाएगा, क्लोपिवाज एपी रह जाएगा एज एन एंटीप्लेटलेट. अलग अलग दिया तो बेहतर है. सो that will be one problem according to me with the clopivaz AP kind of combination. What is the advantage of this combination? Always compliance, right? Always compliance. Against that, actually, we don't know the bioavailability problems. Are these combinations equally bioavailable if as against giving them separately? We don't know कैसे चिपकाया है और जो सरफेस चिपकाई गई है वो सरफेस डिसॉल्व होगी कि नहीं. आप समझ रहे कि नहीं? So actually bioavailability is a problem with all FDCs, all fixed. Municipality में do they give this accurate kind of drugs? No, वो fixed drug नहीं है. Are there combinations given for TB? Combination मतलब कैसा? For FDC, that FDC is separate for drugs एक स्ट्रिप में कि सब चिपका देते हैं? सेपरेटली देते हैं, चिपकाते नहीं है ना. या ओके. सो एपका में 3 ड्रग्स कंबाइन करते हैं एक टैबलेट में, वो यूएस में भी करते हैं शायद, और आई डोंट नो. सो आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इवन बीएमसी इज नाउ कमिंग अवे फ्रॉम एफडीसी इन देयर डिस्पेंस प्रोडक्ट्स, आई थिंक. सो वी हैव टू काइंड ऑफ थिंक बायोअवेलेबिलिटी, स्पेशली अगर चीपर ब्रांड लिया या जेनेरिक ब्रांड लिया तो बहुत प्रॉब्लम है. सो ओके, लेट्स टेक वन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कुछ तो इलॉजिकल होते हैं, अपन को लॉजिक ढूंढना पड़ता है. ये है फ्लूटिकाजोन, विच इज़ अ स्टीरॉयड फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, क्रॉनिक यूज. उसके साथ है ऑक्सीमेटाजोलिन, दैट इज अपना ओट्रिविन टाइप, विच इज एन एक्यूट मेडिसिन. अभी क्या है इसका लॉजिक, क्या है? ऑक्सीमेटाजोलिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं देते हैं और ये जिंदगी भर भी दे सकते हैं. ये क्या है ड्रग, क्यों बनाया गया है, मालूम नहीं है. तो मैंने कोशिश करता हूँ कभी कभी कि ढूंढने को, वी मस्ट जस्टिफाई इट. वो लोग ने बेचारे ने मेहनत किया है. तो द ओनली सिचुएशन वेयर आई वुड गिव दिस ड्रग इज एन acute viral rhinitis for 3 days. Like, the good thing about steroid nasal spray is that they work in both viral rhinitis and allergic rhinitis. And in that case, you may give. अभी इसमें compliance कितना से improve होगा? जिसको सर्दी है, नाक बंद होता है, तो वो तो ओट्रिविन 6 बार डालेगा, राइट? उसको compliance का जरूरत नहीं है. So I would not give this drug at all to anybody. Next, please. मेरे को बोलने को भी अच्छा नहीं लगता इसके बारे में. तो but my request to you is, many of us still use, my gastroenterologist friends use this combination. Please stop using any combination of quinolones with imidazoles, anything, right? एकदम बंद. Because one thing, it is a shameful thing that you can't decide कि amoebic है कि bacterial है. होएगा viral, लेकिन next please. ये सब एंटी डिप्रेसेंट फ्लुओक्सिटिन है और एंटी साइकोटिक ओलेंझामिन है. नाउ द लॉजिक हियर इज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑगमेंटेशन ऑफ
SSRIs. In some SSRIs, after they have been given, don't give the adequate benefit to the patient. And in these patients, adding a small dose of antipsychotic helps, but never in combination. और इसमें olanzapine 5 milligram है, which is a higher dose than you should start with in a depressed patient. Next. So my whole purpose is any combination that the patient is receiving, you check that combination. Beta cap plus, very commonly used. क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें फ्लुनारिजिन है, माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस, इसमें प्रोप्रानोल है, माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस. क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कोई है प्रॉब्लम? साइबिलियम अपन यूज करते हैं अलोन, अपन इंटराल यूज करते हैं अलोन, कंबाइन कर दिया है. नहीं, अगर एक बस नहीं हुआ, आपको एक से नहीं हुआ तो दो करने को. प्रॉब्लम ये है कि इंड्राल लॉन्ग एक्टिंग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 घंटा है. साइबिलियम 1 a day ड्रग है, इंड्राल LA 2 a day ड्रग है. ये नहीं कर सकते. नहीं तो क्या करना पड़ेगा कि ये सुबह देने का और प्लेन बीटा कैप शाम को देने का. वो नहीं करना है. और ये तो 10 milligram वाला कॉम्बिनेशन है. सॉरी 10 तो फ्लुनारिजिन है, आई एम सो सॉरी. तो ये नहीं करने का. यू हैव टू गिव प्रॉपर डोजेस. नेक्स्ट प्लीज. ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि एक्सट्रीम क्या होता है. निमेसुलाइड विद पैरासिटामोल विद कैफीन विद फिनाइलेफ्रिन विद सेट्रिजिन, ये एक्सट्रीम है. मतलब scrutinize all cough cold medicines, please, all of them, because they contain, we don't give nimesulide anyway, but I'm just saying. Next please. She's asking, can NSAIDs acutely increase creatinine by just few doses? Yes, they can shut down the kidney. I don't know whether approval is necessary in India. Well, frankly, I don't know how they get approved. They, okay. But now the approval is centralized. It goes to DCGI, and recently DCGI has withdrawn Multiple combinations. Yeah, correct. and others are also on the bid. So all the he's saying that now there is more supervision by the central body, and therefore many have been withdrawn. Many will take time to be withdrawn. But all these that we have chosen today are available today. Yeah. This is itraconazole terbinafine. Anybody uses? कितने ड्रग हैं इसमें? 2 ड्रग हैं. अभी नेक्स्ट देखते हैं. इसमें कितने हैं बोलो? इसमें 3 हैं. बेक्लोमेथाजोन, नियोमाइसिन एंड क्लोट्रिमोल. एंटीफंगल, एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड. आगे देखिए. इसमें कितने हैं? 4 हैं. इट्राकोनाजोल, ओफ्लॉक्सिन, ऑनिडाजोल, क्लोबेटाजोल. 4 हैं. राइट. इट्राकोनाजोल का तो लोकल क्रीम ही नहीं आना चाहिए मेरे को लगता है. हाँ ठीक है. अभी और देखते हैं. 5 क्लोबेटाजोल and steroid, gentamicin, some drug that I don't know about, tolnaftan I don't know about, clotrimazole. 5 drug का combination है. Dermis 5 is very popular, let me tell you that, and chemists have given Dermis 5 to multiple patients. Next please. And this is what happens. This is the groin of a patient. Steroid cream लगाया है for fungus. एक तो फंगल इन्फेक्शन, प्लीज स्टीरॉयड और फंगस को मिक्स करना बंद कर दो. ये फंगस है, उसको स्कारिंग हो गया है. उसको जैसा स्टीरॉयड का कैसा स्कारिंग होता है स्ट्राई टाइप का, वैसा स्कारिंग हो गया है. नेक्स्ट प्लीज. एक और चीज़ है स्किन के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए स्टीरॉयड यूज करते हैं. मोमेटाजोन है इसमें. नेक्स्ट प्लीज. ये लाइटनिंग करने वाले को एक्ने हो गया है बिकॉज ऑफ स्टीरॉयड्स. नेक्स्ट प्लीज. I would say, why should it be given only? Pregabalin, nortriptyline. This is a very common prescription. Gabapentin, nortriptyline, gabapentin, amitriptyline, pregabalin, nortriptyline, very common. It is approved and you should not use it. None of us should use it unless you are supervising beautifully. This is neuralgia drug, right? And start with one drug in neuralgia, always. Start low, go slow, up titrate. तुमने 150 मिलीग्राम प्रीगाबालिन दे दिया, फिर भी पेशेंट को नहीं ठीक हो रहा है, तो क्या करने का? तो पहले प्रीगाबालिन कम करो. जो 150 नहीं काम कर रहा है तो उसको क्यों रखना है? Why do you want to add NT, nortriptyline to pregabalin? You decide that a drug is useless. We don't decide that. Deprescription is a part of our therapy. You have to deprescribe something that does not work, period. Next please.
ही इज आस्किंग प्रीगाबालिन विथ मेथिकोबाल, मतलब 1500 मेथिकोबाल और प्रीगाबालिन वॉट एवर 75, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन हैं. एंड आई हैव सीन पेशेंट्स ऑन 1500 ये वाला विथ एक और 1500 न्यूरोकाइंड ओडी, और फिर एक और 1500 मेटफॉर्मिन के साथ. ये तो 1500 चालू है. क्या कर रहे हैं? वी आर इंक्रीजिंग, मे नॉट हार्म बट वी आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट सो ट्रेमेंडसली फॉर द. Some people's का blood levels go about 2000. Yeah, very common, right? Pregabalin, duloxetine, another problem. Very common preparation. Both anti-neuralgic, meaning neuralgia-related drugs. And please give them separately. The reason is कि titration easy होता है. You have to start with इसमें 50 milligram pregabalin. You will start with 50, go to 75, go to 150, etc. And similarly with duloxetine, you have to start with 20, go to 30, 40, 60. So अलग अलग दो, एक ड्रग पहले दो. ऐसा नहीं है कि दो ड्रग कॉम्बिनेशन देने से दोनों की साइड इफेक्ट कम होएगी. नहीं है, दोनों की इफेक्ट कम होएगी, साइड इफेक्ट क्यूमुलेटिव होएगी. नेक्स्ट प्लीज. एक पॉपुलर ड्रग है, वो कौन सा ड्रग है जिसमें सिर्फ क्लिनिडियम और क्लोराइसिक ऑक्साइड है? लिब्रैक्स. लिब्रैक्स इतना पॉपुलर है, उसमें क्या है वो पहले सोचो. क्लिनिडियम क्या करता है? व्हाट डज क्लिनिडियम डू? क्लिनिडियम में एंटीस्पाज्मोडिक, राइट? स्पाज्म ठीक करता है. आईबीएस में स्पाज्म होता है, ठीक है. क्लोराइसिक क्या करता है? Anxiolytic. It belongs to benzodiazepine group like nitrazepam, diazepam, etc. एक तो अपन ने सीखा है कि बेंजोडायजेपिन लंबा नहीं देने का, राइट? और इसमें लंबा कितना चलता है? मतलब बहुत लंबा चलता है, राइट? आईबीएस डिजीज ही लंबा चलता है. सो ये गलत है. और तुम दो एंटीस्पाज्मोडिक दे रहे हो इधर, डाइसाइक्लोमिन और क्लिनिडियम, और क्यों बिकता है ये? क्योंकि आईबीएस प्लस नाम रखा है, या वेरी अट्रैक्टिव नेम, तो वो बिकेगा. नेक्स्ट प्लीज. अभी नाउ टू द मोर कॉमनर थिंग्स दैट वी सी. साइब्लेक्स एमवी. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? कंप्लायंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि 2 बार दिया दिन में, ठीक हो जाए, ठीक है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? Voglibose has to be given after the first bite of meal. Gliclazide has to be given before meals. Metformin is to be given after meals. तो पेशेंट को 3 टुकड़े में एक टुकड़ा खाने का. क्या है ये? हॉरिबल. एंड दूसरा प्रॉब्लम, कितनी बार देने का ये ड्रग? 3 बार देना पड़ेगा क्योंकि प्लेन ग्लाइक्लाजाइड है. तो इसमें कंप्लायंस का भी किधर होएगा? नहीं होएगा ना. नेक्स्ट प्लीज. मेटफॉर्मिन, ये आप जो बोल रहे थे ना, मेथिकोबाल वाला, इतना सारा ड्रग, मतलब आई डोंट नो मेथिकोबाल कहाँ से आता है इतना. सब ड्रग्स के साथ मेथिकोबाल है. नेक्स्ट प्लीज. ओके, नाउ न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन का है ना जो प्रॉब्लम है ना, मैं बहुत एंटी न्यूट्रिशन आदमी हूँ. मतलब डायटिशियन बीवी है मेरी, और मैं इतना उनसे पक गया हूँ क्योंकि हर एक न्यूट्रिशनिस्ट का हर एक अपना ओपिनियन बार बार बदलता हुआ आता है. और फैट्स आते ही रहते हैं. आज क्रोमियम आया, फिर सेलेनियम आया, फिर मैग्नीशियम आया, फिर एक और आया. ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको न्यूट्रास्यूटिकल्स का एक बड़ा सा इंडस्ट्री बना दिया है. इसमें जाने से पहले एक कविता सुनाई देता हूँ. मैं पुरानी कविता सुन लें, सहन कर लें, टाइम है इसके लिए. पत्नी डायटिशियन है और डायटिशियन, ये न्यूट्रिशन वाले बड़ी इंडस्ट्री हो गई. It's a medium scale industry to make large scale people small scale, basically, right? तो ये जो इस बात पर कविता है, मेरी पत्नी की वजह से मुझे कितनी तकलीफें होती. एक थीम है कि कविता का टाइटल यूं दिया है कि आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई पिज्जा खाए. मैं हृष्ट पुष्ट हूं, अपनी साइज से संतुष्ट हूं, पर बढ़ती हुई पहुंच पर बीवी अकड़ रही है क्योंकि जहां वेस्ट लाइन बढ़ रही है, हेयर लाइन पिछड़ रही है. तो आजकल मेरी पत्नी पर एक नई धुन सवार है. मुझ जैसे हट्टे कट्टे को दुबला करने का विचार है. उसके डाइट प्लान को फॉलो करने में टेंशन नहीं है, पर टाइम टेबल में डाइनिंग टेबल का कहीं मेंशन नहीं है. एक डॉक्टर होने के नाते मेरा अपनी पत्नी को फर्ज है बताना कि बैलेंस्ड डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है खाना. भूखे पतियों की आत्माएं बाद में पड़ोसन के किचन में पटकती हैं.
भूखे पतियों की आत्माएं बाद में पड़ोसन के किचन में भटकती हैं। कम खाने से जिंदगी लंबी होती नहीं, लंबी लगने लगती है। ब्रेकफास्ट में मुझे मिलते हैं आधा खाखरा, आधा कप चाय, और कभी उससे भी कम। और खाते खाते मीना कुमारी वाला वो गीत गुनगुनाता हूं, अजीब नाश्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म। मुझसे कहती हैं, व्हाई डोंट यू जॉइन सम जिम और एरोबिक क्लासेस। और यहाँ अपना तो ये हाल है कि whenever I feel like exercise, I lie down till the feeling passes. और जिम गया भी तो ट्रेनर ने मुझसे कहा, ठीक है कल से कुछ लूज कपड़े पहन के आ जाना। मैंने कहा लूज कपड़े होते तो जिम आता ही क्यों, ये तो पता नहीं। और मुझे स्ट्रेचेस और क्रंचेस करवाने की नाकाम कोशिशों के बाद मेरे ट्रेनर का ये मत है कि मुझे फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नहीं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं ये योग, ये मॉर्निंग एक्सरसाइज, ये सब हमारा ईगो, हमारा अहंकार बढ़ाते हैं। रोज सुबह बड़ों के पांव छूने चाहिए, ये सब हमें खुद अपने पांव छूना सिखाते हैं। पत्नी जी कहती है, मुझे याद है शादी करते वक्त मैंने जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने की कस्में ली थी, पर सोचती हूं कि अब तुम्हारे शरीर का आधा हिस्सा ऐसा है जिससे मैंने शादी ही नहीं की थी। ये हाल है। आइए, लेट्स गो टू न्यूट्रास्यूटिकल्स। थैंक यू। Okay, nutraceuticals is big business, and these drugs will be given to many patients. I'm playing a guessing game. Okay, you have to guess what is this for. Weight loss, and it contains Garcinia combo, whatever, green coffee bean, green tea, capsicum tablets. Wow. None of them are approved for any kind of weight loss in any condition. So, but there are proponents. Nutritionists are proponents of such things, which have one paper published somewhere. Or in my experience is the 3 word that they use. In my experience, you must be careful of these supplements because absolutely unnecessary. We don't know the side effects. Whether this coffee will cause tachycardia or not, I don't know, and expensive. Next, please. OVA Care HD. Indication? Female infertility. Yeah, you see that ovum there? Accepting gladly all the sperms. And what does it contain? N-acetylcysteine and inositol. I don't know. Dr. Sheila is an expert here. Dr. Gwalani, this is a good drug? PCOD, okay. तो ये क्या है, ये क्यों होता है, इसके हम कुछ क्यों नहीं कर सकते, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स विद द ऑर्गन नेम इज नॉनसेंस। वन थंब रूल, कार्डियोविट, नेफ्रोसेव, लिवरिल, सब ऑर्गन नेम्स वाले आर नॉनसेंस। लेट्स सी व्हाट दिस इज। इट कंटेन्स सिलीमैरिन। सिलीमैरिन का एविडेंस इज सो पुअर, एंड सिलीमैरिन, एंड हैज दिस बीन यूज्ड बाय गैस्ट्रोलॉजिस्ट? इट हैज बीन यूज्ड। जो बरसों पहले यूज किया था गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने, वो बदलता रहता है। नेफ्रोलॉजिस्ट की आपने द नेफ्रोलॉजिस्ट यूज मेनी थिंग्स, दे हैव यूज्ड, इतना सारा ड्रग्स हैव बीन गिवन बाय नेफ्रोलॉजिस्ट एंड गिवन अप बाय नेफ्रोलॉजिस्ट। एवरी 2 साल पे 3 साल पे एक नया चीज आता है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास बहुत कुछ होता है। तो ये ऐसा ड्रग है। नेक्स्ट प्लीज। रोजी फ्लेक्स। वो फ्लेक्स कहाँ से आया? वो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स के आया। 3 ड्रग है अंदर, और ये बहुत पॉपुलर है अभी। दिस कॉम्बिनेशन और कंपोनेंट्स दिस कॉम्बिनेशन हैज बिकम वेरी पॉपुलर। इसमें आई विल रीड आउट व्हाट दिस इज। डेविल्स क्लॉ, बोस्वेलिया इज मोर पॉपुलर, एंड आइरिडोफोर्स और समथिंग लाइक दैट। मतलब एक अगर लिखना भी है प्लस एज प्लेसिबो भी लिखना है, तो एटलीस्ट जिसका साइड इफेक्ट मालूम हो या नहीं मालूम, वो तो नहीं लिखना है। अपने को मालूम भी नहीं ये क्या करता है, राइट? एक खाली शल्लाकी है ना, वो बरेली शल्लाकी, राइट? क्या मालूम, लेकिन चलो थोड़ा सा उसको एविडेंस दे भी दिया शल्लाकी को, लेकिन अगर खाली शल्लाकी यूज करो ना, 3 ड्रग साथ में। नेक्स्ट प्लीज। ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है। नेफ्रोसेव, एसिटाइलसिस्टीन, लोग बोलते हैं ना एसिटाइलसिस्टीन देने का, डाइट देने से पहले एसिटाइलसिस्टीन देना। डोज अगर देने भी था वो भी निकल गया, उसका अप्रूवल निकल गया है।
एसिटल सिस्टम का अप्रूवल IPF में था, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में, निकल गया। उसका इधर था कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी प्रिवेंशन, वो भी निकल गया। और इसमें क्या है, क्यों देते हैं नेफ्रोसेव? पेशेंट को कितना अच्छा लगता है एज अ प्लेसिबो, राइट? अग्रीड, पेशेंट एज अ प्लेसिबो यू वांट टू गिव नेफ्रोसेव, मगर डोंट स्टार्ट बिलीविंग इन नेफ्रोसेव कि भाई ये तो लेना है, तुमने नहीं लिया, 1 महीने से नहीं लिया, इसके लिए क्रिएटिनिन बढ़ गया, ये गलत है। और इसमें रिडिकुलस डोज है, 150 मिलीग्राम कुछ एसिटाइलसिस्टीन है। नेक्स्ट प्लीज। और मजे की बात ये देखो, नेफ्रोसेव फोर्टे, तो अपने को लगेगा कि पहले नेफ्रोसेव का कुछ होएगा उसमें, और फिर एक फोर्टे डाला है, तो उसमें एक चीज निकाल दिया है और एक चीज ऐड किया है, पायरिडॉक्सामिन। मेरे को मालूम नहीं क्या है, किसी को मालूम होगा तो मुझे एजुकेट करेंगे। व्हाट इज पायरिडॉक्सामिन? दैट इज पायरिडॉक्सिन। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज पायरिडॉक्सामिन, better than B6, it might be B18, we don't know. Next please. ये बहुत पॉपुलर है, कीटो एनालॉग्स ऑफ। नाउ इसका लॉजिक ये है, मैं पहला बताता हूँ और उसके बाद में कॉस्ट बताता हूँ। इसका लॉजिक ये है कि CKD पेशेंट में प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना होता है, और प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से अमाइनो एसिड्स इस फॉर्म में दे सकते हैं जिसको कीटो एनालॉग्स बोलते हैं। अमाइनो एसिड के ये आप जब नाम देखेंगे ना, आई जस्ट रीड देम, देयर आर कीटो एनालॉग ऑफ आइसोल्यूसिन, ऑफ ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, वैलिन, मिथियोनिन, ये सब अमाइनो एसिड्स हैं और उसके कीटो एनालॉग्स हैं। कीटो एनालॉग्स में शायद ऐसा होता है कि प्रोटीन की जो असर होती है किडनी पे इन वर्सनिंग, इससे नहीं होती। एंड इसका डोज, ये सब जितने मिलीग्राम दिखते हैं ना आपको, वो मिलीग्राम मिला जुला के 3000 मिलीग्राम 4000 मिलीग्राम देना होता है पर डोज 3 बार। ओके, तो ये तकरीबन 300 रुपये का कॉस्ट अगर करेक्ट डोज में दिया तो पर डे का है, या और देते क्या डोज है? नेफ्रोसेव 1BD, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्लेसिबो ही है, आपके लिए प्लेसिबो है, डॉक्टर के लिए प्लेसिबो है। डॉक्टर को अच्छा लगता है देना, पेशेंट को तो मालूम भी नहीं इसमें क्या है, तो ये नहीं देना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग देने लगे हैं। अगेन द थिंग दैट हैज़ नो मेडिसिन्स हैज़ मेनी मेडिसिन्स, दैट इज द थंब रूल इन डिजीजेस। नेक्स्ट प्लीज। हिपा मर्स, हिपा अगेन लिवर हो गया और ये मर्स हो गया। Again, something that has been often given by gastroenterologists. Again, they basically will give it for acute hepatitis, जैसे लीव 52 देते हैं, जैसे यूडिलिव देते हैं, दोनों यूजलेस हैं, वैसे ये भी देने लगे हैं। सो अगेन एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। या सो दैट, सो बेसिकली टेक केयर। नाउ द लास्ट थिंग ऑफ द डे, आई थिंक हास्य से बंद करते हैं, 1 बजने को आया है, 1 बज गया है। This is something that is new and therefore it might not be great, but I'm still going to try it because आप लोग अच्छे ऑडियंस हैं, you pardon easily. Okay, मर्स पे अर्ज किया है, is the PPT. मर्स रोग, there are multiple 17 or 18 diseases or conditions or things, and I'll say a couplet on each of them, yeah, and you don't need to clap on each of them because not all are great. मर्स पे अर्ज किया है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, इरशाद कहेंगे, चले। विटामिन डी डेफिशिएंसी पे एक शेर याद आता है कि जावेद अख्तर साहब का शेर है कि ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। और एक शबनम कपूर, एक अनु कपूर की मदर हैं, सिमिलर शेर है, मेरे को वो याद आ रहा है इसके लिए बोल देता हूँ कि वो लोग, ये रिच पुअर डिवाइड की बात होती है ना इंडिया में, जब वो लोग जिनके पास चरागों का ढेर था, वो लोग जिनके पास चराग दिया, वो लोग जिनके पास चरागों का ढेर था, वो लोग मेरे हिस्से के जुगनू भी ले गए। शबनम कपूर। नेक्स्ट प्लीज। एक हमारे शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, खामखा हैदराबादी, ह्यूमरस पोएट ऑफ हैदराबादी स्टाइल। वो लिखते हैं, मुझे कंजंक्टिवाइटिस की याद आती है कि मेरी आंखों में ये जो, उन्होंने तो रोमांटिक लिखा था, मेरी आंखों में ये जो पानी है तेरी आंखों की मेहरबानी है। नेक्स्ट चलते हैं एंटीबायोटिक्स। इसके लिए अगर कुछ 2 पंक्तियां कहनी हो तो परवीन सुल्ताना का गाना याद आता है
कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। नेक्स्ट प्लीज। एजिथ्रोमाइसिन, हम लोग को 3 ड्रग है ना एटिपिकल में। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम, मैंने क्या बनाया था, हमें तुमसे प्यार कितना, आई डोंट नो बट लेट मी सी, मोर देन लियोफ्लॉक्सासिन बट लेस देन डॉक्सी, ऐसा कुछ। नेक्स्ट प्लीज। एक शेर अर्ज है कि बदले हुए वक्त की देखो सोच कितनी न्यारी है, बदले हुए वक्त की देखो सोच कितनी न्यारी है, दिल का बड़ा होना अब डॉक्टर कहते हैं बीमारी है। नेक्स्ट प्लीज। You know that physician assisted suicide, वो आदमी खुदकुशी करने जा रहा था, मैंने उसे गोली मार दी। नेक्स्ट प्लीज। समटाइम्स एक्ट्स ऑफ ओमिशन कैन कॉज डेथ। तो इसके बारे में शेर कहा है अहमद फराज साहब ने, कहते हैं कि वो जहर देता तो सबकी निगाहों में आ जाता, वो जहर देता तो सबकी निगाहों में आ जाता, सो उसने यूं किया कि वक्त पर दवा ना दी मुझे। नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए अगेन अगेन हमारे जो हैदराबादी हैं, ख्वामखा हैदराबादी, उनका एक बढ़िया शेर है। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर से कि पूछ लेते फ़कत मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे शायर हैं सौम्य जोशी, उनकी 4 पंक्तियां हैं कि खंजर जैसे ही घुसा कि तुरंत उसने कहा, खंजर जैसे ही घुसा कि तुरंत उसने कहा कि सच कहूं तो जो हुआ अच्छा हुआ, 10-11 दिनों से यार मैं भूखा था, आज साला पेट में कुछ तो गया। सौम्य जोशी। नेक्स्ट प्लीज। लो इनकम ग्रुप में प्रेगनेंसी अगर हो तो 2 पंक्तियां बनती हैं कि मिडिल क्लास नर नारी की तुम तब देखो लाचारी, मिडिल क्लास नर नारी की तुम तब देखो लाचारी, जब पति का हाथ तंग हो और पत्नी का पांव भारी। नेक्स्ट प्लीज। ये तो मतलब काफी टेंजेंशियल है, फिर भी मल्टी मॉर्बिडिटी। सीता जी महलों को छोड़ वनवास गईं, बोलो इसमें क्या सीख है, 3-3 सासू माएं हो तो जंगल ही ठीक है। जेरियाट्रिक केयर। नेक्स्ट प्लीज। सॉरी, माइल्ड कॉग्निटिव इज फर्स्ट, आई एम सो सॉरी। इसमें तो 4 पंक्तियां मेरी हैं कि 2 बातों से मुझे अंदाजा आ रहा है कि बुढ़ापा अभी से मेरे दिमाग को खा रहा है। पहली बात तो ये मेरी याददाश्त कम होती जा रही है, और दूसरी बात मुझे याद नहीं आ रही है। नेक्स्ट प्लीज। जीरियाट्रिक केयर is in a bad shape currently because children are abroad of senior parents। तो उस पर 2 पंक्तियां हैं। बाप कहता है बेटे के बारे में कि मैं मुंबई में रहता हूँ, वो मैनहट्टन में रहता है, मैं मुंबई में रहता हूँ, वो मैनहट्टन में रहता है, मेरा ही बेटा अब मुझको डिस्टेंट रिलेटिव कहता है। नेक्स्ट प्लीज। न्यूरोसिस एंड साइकोसिस में दिस इज समथिंग दैट एक हमारे साइकेट्रिस्ट हैं जो सिखाते हुए बताते हैं कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 2 प्रॉब्लम्स। कि न्यूरोटिक वो है जो हवा में महल बनाना कबूल करता है, साइकोटिक वो है जो उन महलों में रहने की भूल करता है, और साइकेट्रिस्ट वो है जो दोनों से भाड़ा वसूल करता है। चार बाकी हैं। डेथ बाय ड्राउनिंग, अगेन मेरी रचना नहीं है, मुकेश मालवणकर नाम के कवि की रचना है। लिखते हैं कि एक नौजवान पुलिस फोर्स में भर्ती होना चाहता था, मगर फिजिकल में बार बार फेल होता गया क्योंकि उसकी छाती फूल कर 36 इंच की ना होती थी।
हताश होकर उसने समंदर में छलांग लगा दी। 2 दिन बाद जब मिला तब उसकी छाती फूलकर 36 की हो चुकी थी। टू लेट। नेक्स्ट प्लीज। अब इसके बारे में क्या लिखें, लेकिन एक पेशेंट ने लिखा है तो इसलिए सुना रहा हूं। द ओनली बिलो द बेल्ट थिंग दैट यू विल हियर टुडे। डॉक्टर साहब, क्या पता था बढ़ती उम्र में ये हाल होगा। क्या पता था बढ़ती उम्र में ये हाल होता है। जहां जहां लालसाएं पैदा होती थी वहां लुलिकोनाजोल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट प्लीज। And the last one of the day, and before I end, thank you very much again for coming. Two things that I would like to announce. One, this pharmacotherapy group, which we call Armamentarium 2024, will be renamed Armamentarium Outpatient Pharmacotherapy from tomorrow. And we will continue to, because this group I think is enjoying what we are doing. So I'll continue to do whatever we have been doing in terms of MCQ, mainly MCQ, with 2 options only, so that it is easy to follow and then learn that one particular message. Will continue. And second announcement is that I would love you to come on 13th of October, morning 10 to 1 or 9:30 to 1:30, and 20th of October, 9:30 to 1:30, to the same place for something called QED. It is an entertaining experience, and I'm sure you will love it. So that is a juxta-med quiz, we call it. So yeah, you will have to experience it if you've not already experienced it before. And third, last, in December, we have 2 events, weekend events in Flame Institute, Lonavala, near Pune, sorry. December dates will be decided because we still do not have the bookings given by the school. Flame Institute, 1 session of Friday to Sunday will be for those who have never attended or come to Flame before. And 1 session will be for everybody, will be an open session. So please be, here we teach many things, not just pharmacotherapy, we teach clinical medicine generally. A lot of themes are there. So themes will be different for both days. So you can come if you like. How many of you have never come to Flame University with the? Okay, so do come if you are interested in allopathy and interested in clinical medicine. Do come. हाँ, लाइट्स डिम करें मतलब जाने का संकेत है। 1 ही मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। ओके, लास्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। मेरा एक डॉक्टर दोस्त है जिसका ईमानदारी से इतना गहरा नाता है कि मरीज के डेथ सर्टिफिकेट में अक्सर कॉज ऑफ डेथ की कॉलम में अपना नाम लिखवाता है। थैंक यू सो मच।